Hello everyone. Students, today we are going to revise our first poem, The Road Not Taken by Robert Frost. And as I told you in our main lecture, that Robert Frost was an American poet, but he lived his most of time of his life in New England, and he wrote ordinary poetry, but his poetry was insightful. It has a deep meaning. Like this poem also, The Road Not Taken, it is very ordinary when we say this, but it has a deep meaning. And today we will go through the poem again. We will revise it. So at first I want to tell you the central idea of this poem. This poem is about making choices in life and the choice that shape our future. Many alternatives are available at the time of choice, but man has to select one. It is only the future that will reveal whether the decision taken is wrong or not. After taking decisions, we can't undo them. We can only regret them. Even if we wish, we can't start all over again. So, taking the right decision and making correct choices is very crucial to an individual's life. Any wrong decision or choice can spoil our future. कोई भी रॉन्ग डिसीजन और कोई भी रॉन्ग चॉइस जो है हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर सकती है। और हम सभी को जो है ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है चॉइस करनी पड़ती है हमारे फ्यूचर को एक अच्छा फ्यूचर जो है उसको अच्छी शेप देने के लिए। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उनमें से हमें एक को चूज़ करना होता है और उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डिसिजिव होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है गलत और सही का फ़ैसला करके हमें उसको चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम एक बार किसी भी पाथ को चूज़ कर लेते हैं तो हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, उससे दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं। सो अगर हम कभी गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट इसी चीज़ को जो है इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है चूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो क्या चूज़ करे, कब चूज़ करे और कैसे चूज़ करे, इसका जो है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. The poet has come into the deep autumn wood where two roads have diverged into two ways like a fork. Immediately, the poet understands that a traveler traveling both the roads is impossible. Here, the two roads symbolize two ways to go in the life. The poet first thought of traveling both the roads and then discarded the idea. Then he finds himself in a dilemma about the choice of roads. He found that the first road has bent in the undergrowth. The undergrowth has here represents the unknown world. यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है कि एज ए ट्रैवलर वो जो है दो रोड्स को एक बार में जो है सेलेक्ट नहीं कर सकता, दो रास्तों पर एक बार में जो है नहीं चल सकता, और उसके सामने जो है दो ही रास्ते हैं जो उसको ज़िंदगी के दो अलग अलग जो है जगहों पर पहुंचाएंगे, डेस्टिनेशंस पर पहुंचाएंगे। लेकिन उसको किसी भी रोड का जो है प्रॉपरली नहीं पता कि किस रोड से जो है उसको वो प्रॉपरली पहुँच सकेगा, कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। अब वो क्या देखता है कि जो एक रास्ता जो कि पूरा बशिर से झाड़ियों से पूरा बेंट था, और दूसरा क्या बताता है कि जो ये अंडरग्रोथ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अननोन वर्ल्ड को, किसको पता ही नहीं है रास्ता उसको कहाँ लेकर के जाएगा, कितनी इसमें जो है परेशानियों का सामना इसको करना पड़ेगा। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पर poet क्या कहता है? The poet selects the road that appears at first glance to be travelled. The stranger suggests that he has an independent spirit and doesn't wish to follow the crowd. After a moment, he changes his mind, concluding that both roads are equally worn out. और यहाँ पर poet जो है अपना एक डिसिजिव टेम्परामेंट दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि एक रोड जो कि बहुत ही कम ट्रैवल किया गया है और एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट होने के नाते उसने अपने आप को अलाउ नहीं किया कि वो उसी रास्ते को चूज़ करे जहाँ पर जो है दुनिया भीड़
जो है जा रही है। लोग जो है भेड़ चाल जहाँ पे चल रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर जाने से हमें जल्दी जो है अपनी मंजिल मिल जाएगी, जल्दी खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन पॉइंट जो है उस रास्ते को चूज़ नहीं करता है। वो किसको चूज़ करता है? वो उस रास्ते को चूज़ करता है जिस पे बहुत कम लोगों ने कदम रखा है, जो कि बहुत ही कम ट्रैवल किया गया है। और लास्ट में अपने माइंड को जो है सेटअप करता है वो, कि दोनों ही रोड ऐसे हैं जो कि कठिनाइयों से भरे हुए हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उसको फेस करनी पड़ेंगी। तो उसने जो है उस रास्ते को चूज़ किया जो कि बहुत ही कम ट्रैवल किया गया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ पर पॉइंट को जो है असमंजस हो जाती है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मैं उस रास्ते से कभी लौट के आ पाऊँगा। लीव्स कवर बोथ रोड्स इक्वली, दोनों रास्तों पे जो है पत्ते ढके हुए थे, क्योंकि ऑटम सीजन था और ऑटम सीजन में जो है ये कॉमन है कि जो है पत्ते झड़ते हैं और रास्तों पर बिखरे रहते हैं। नो वन दिस मॉर्निंग हैज़ येट टेकन आइदर पाथ, कोई भी जो है इतनी सुबह सुबह किसी ने भी इन रास्तों पे जो है चलना शुरू नहीं किया था, यानी कि अभी तक कोई भी इस रास्ते से नहीं गया था। फॉर द लीव्स लाई अनडिस्टर्ब, क्योंकि जो पत्ते थे वो अनडिस्टर्ब थे, उनके ऊपर पैर नहीं रखे हुए थे, वो कुचले नहीं गए थे। दिस सिम्बोलाइजेज दैट द चॉइसेस इन लाइफ ओपन टू द पोएट आर बोथ अननोन टू हिम। The poet remains committed to his decision to take the road had previously selected, saying that he will save the other road for another day. This symbolizes that he will make the other choice in life only if he is not satisfied with the results of the first choice. वह उसी रास्ते को सेलेक्ट करता है जिसको उसने पहले सोच लिया था कि जिस पे बहुत कम लोगों ने अभी तक चला है, बहुत कम लोगों ने जिस पे जो है जाने का सोचा है, वो उसी रास्ते पे जाएगा। और फिर वो क्या देखता है कि अगर उसका ये रास्ता जो है गलत हुआ तो कभी फिर जो है वो दूसरे रास्ते पर जाएगा जिसको उसने छोड़ दिया है, उस रास्ते को कभी फिर चूज़ करेगा। कि अगर वो अपनी फर्स्ट चॉइस के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं रहा तो दूसरी चॉइस भी करेगा। He observed that he will probably never pass this way again, as one path leads to another, and thus will never have an opportunity to take the other road. फिर वो एक ऑब्जर्वेशन और भी करता है कि जो है एक बार अगर हम किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उससे वापस आना बहुत ही कठिन हो जाता है, और क्योंकि एक रास्ता जो है हमें दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है और उससे हम कहीं और जो है बहुत सारे मोड़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें पीछे आने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये महसूस करता है कि वो कभी उस दूसरे रास्ते को तो चूज़ कर ही नहीं पाएगा जिसने उसको भविष्य के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ये एक ही रास्ता इसको जो है बहुत सारे अलग रास्तों पर लेकर के जाएगा जिससे ये कभी भी मुड़ करके वापस नहीं आ पाएगा। दिस सिम्बोलाइजेज दैट ही विल नॉट बी एबल टू टेक द सेकेंड चॉइस इन लाइफ एट ऑल, और ये सिम्बोलाइज करता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी जो है दूसरी चॉइस करने के एबल नहीं होगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. यहाँ पर poet क्या बोलता है? In years to come, the poet says, he will be telling others about the choice he made. अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में, भविष्य में वो जो है लोगों को बताएगा कि उसने क्या चॉइस किया था ज़िंदगी में। एक ऐसा रास्ता जो कि बहुत कम लोगों ने चूज़ किया, जो कि लोगों को लगता था बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने उस रास्ते को चूज़ किया। मीनिंग दैट ही विल टॉक अबाउट व्हाट डिसीजन इन लाइफ ही टॉक, वाइल डूइंग सो ही विल साई आइदर विद रिलीफ दैट ही मेड द राइट चॉइस और विद रिग्रेट दैट ही मेड द रॉन्ग चॉइस। और वही टाइम होगा जब वो बताएगा लोगों को कि उसने जो है ये रास्ता चूज करके राइट चॉइस जो है अपनी दिखाई थी या रॉन्ग चॉइस थी उसकी, क्योंकि उसके रिजल्ट आने तो बाकी है ना, अभी तो उसने रास्ता चूज़ किया है। जब वो इस रास्ते पर चलेगा तो उसको पता चलेगा ना कि इस रास्ते को चूज़ करने के रिजल्ट अच्छे निकले या बुरे, तो वो भविष्य में लोगों को बताएगा कि कौन सी चॉइस जो है उसकी ठीक थी। वेदर राइट और रॉन्ग, द चॉइस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। चाहे ये चॉइस उसकी राइट हो या रॉन्ग, लेकिन इस
चॉइस का जो उसकी लाइफ पर जो है बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डू द एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. Two roads traversed in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could. What do the roads symbolize? इस में से जो है हमारे स्टेंजा में से ये 4 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, और एक क्वेश्चन क्या है इसमें कि ये रोड क्या है, क्या सिम्बोलाइज करता है. द रोड सिम्बोलाइज द डिफरेंट चॉइस इन अ मैंस लाइफ विच व्हेन टेकन विल मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ. ये रोड जो है सिंबलाइज करते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चॉइसेस करता है, अलग अलग चॉइसेस हैं उसकी, और एक पर्टिकुलर चॉइस जो उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर के आएगी. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम सेपरेटेड फ्रॉम अनदर. हमें अपने एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना जिसका मतलब इसके बराबर है, सिनोनिम है, जो सेपरेटेड फ्रॉम अनदर, दूसरे से अलग हुआ, डाइवर्स्ड. वाई डिड द पोइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड विच रोड टू टेक. पोइट जो है लंबा टाइम क्यों लेता है, कि इसको डिसीजन लेने में इतना लंबा टाइम क्यों लेता है कि उसको कौन से रोड पे जाना चाहिए. ही टुक अ लॉन्ग टाइम एज ही वॉन्टेड टू बी श्योर ऑफ हिज चॉइस सो देयर इज़ नो रिग्रेट इन द फ्यूचर. क्योंकि उसको लंबा टाइम क्यों लगा, क्योंकि वो श्योर होना चाहता था अपनी चॉइस पे कि उसकी चॉइस जो है ठीक है या गलत है. वो पहले थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहता था, इसके ऊपर जो है सोचना चाहता था, और क्योंकि भविष्य में जो इसके लिए कोई रिग्रेट वो नहीं कर पाएगा, पछतावा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो उसने सेलेक्ट कर लिया वो उसकी ज़िंदगी के अंतिम छोर तक उसके साथ चलेगा. व्हाट डज येलो वुड सिग्निफाई. येलो वुड क्या है, लिटरली मीन्स द फॉरेस्ट इज़ कवर्ड विद द येलो लीव्स. इसका मतलब क्या है कि पूरा जंगल जो है वो येलो लीव से कवर्ड है. एज इट इज़ ऑटम सीजन, क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा है. हाउ एवर मेटाफोरिकली इट मीन्स द सीजन ऑफ हिज लाइफ इन विच ही मेड हिज डिसीजन. अगर हम मेटाफोरिकली इसको देखें तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सीजन उसकी ज़िंदगी का जिसमें उसने ऐसा डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन अपनी ज़िंदगी को एक नई शेप देने के लिए लिया. हमारा नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, देन टुक द अदर जस्ट इज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज grassy in wanted wear though as far that the passing there and had warned them really about the same. What does the expression just as fair signify? The expression may mean just as welcoming and enticing as the first road or just as right or good. अपनी जो डिसीजन था उसको जो है वेलकम करते हुए, उसको बढ़ावा देते हुए कि एक फ़र्स्ट रोड जो कि शायद जो है उसकी राइट चॉइस थी और अच्छी चॉइस थी. व्हाट डज द एक्सप्रेशन वांटेड वेयर मीन. यहाँ पर वांटेड वेयर से मतलब क्या है, ऐसा रास्ता जिस पर जो है कोई न चला हो, जो कि घास फूस से जो है भरा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है. Nobody has taken any step on this road. Means nobody has just taken any step there. It is less traveled by the people. Which road did the poet not take? कौन सा रोड जो है poet नहीं लेता है. The poet did not take the road which was mostly used by the travelers. Which was much used by the travelers. ऐसा रोड नहीं लेता है जो कि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिस पर भेड़ चाल से लोग चलते जा रहे हैं, जिसको लोग शायद अपनी ज़िंदगी का शॉर्टकट समझते हैं, खुशियाँ पाने का शॉर्टकट समझते हैं. तो पोइट जो है उस रोड को लेना नहीं चाहता है. नेम द पोएम एंड द पोइट ऑफ दिस पोएम. यहाँ पर जो है पोएम कौन सी, द रोड नॉट टेकन, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. And both at morning equally lay on leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubted if I should ever come back. What does the poet mean when he says no step had trodden black? यहाँ पर poet का क्या मतलब है इस लाइन से, no step had trodden black.
The speaker means to say that when he went there the following day, both the paths appear to be same, as no decay had been caused to the fallen leaves. क्योंकि जब वो दूसरी बार जो है उस रास्ते पर जाकर के खड़ा होता है तो उसको क्या दिखाई देता है कि दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं। किसी भी रास्ते पर जो है कोई भी जो फॉलन लीव्स हैं, जो ऑटम सीजन की वजह से जो है रास्ता पूरा लीव्स से कवर्ड है, येलो लीव्स से, किसी भी रास्ते पर जो है लीव्स कुचली नहीं गई हैं, यानी कि अभी तक सुबह सुबह किसी ने भी इस रास्ते पर ट्रैवल नहीं किया है। What was the doubt the speaker had? स्पीकर को क्या डाउट था? The speaker was doubtful whether he would ever in the future be able to walk the other road in the future. उसको डाउट था कि क्या वो कभी फ्यूचर में जो है दूसरे रास्ते पर चल पाएगा। अगर ये रास्ता उसकी गलत चॉइस हुई तो क्या कभी वो दूसरा रास्ता ले पाएगा। What does both refer in the above lines? इन दोनों ऊपर वाली लाइन्स में both से क्या मतलब है? About the two roads that fork into the forest. both का मतलब उन दो रास्तों से है जो कि वन में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। Why does the speaker exclaim, "Oh, I kept the first for another day"? पॉइंट जो है यहाँ पर क्यों जो स्पीकर है वो क्यों एक्सक्लेम करता है कि मैंने पहले वाला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है। Here the poet is either consoling himself, अपने आप को सांत्वना दे रहा है, or gratified that he has eventually taken his decision. He adds that he would perhaps tread the other road on another occasion. और वो साथ में ये भी बोलता है कि वो जो है कभी किसी और समय जो है इस रास्ते को चूज करेगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads traversed in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Who is I in the given lines? I is the poet, who is also the traveller, Robert Frost himself. Which expression in the above lines mean after many years? The expression is ages and ages hence. Ages and ages hence is the expression which means after many years. How will the speaker tell his story? Speaker जो अपनी story कैसे सुनाएगा भविष्य में? The speaker will tell his story with a sigh. गहरी सांस लेते हुए, रिलैक्सेशन की सांस लेते हुए। The sigh could be the relief as the choice was right, or of sadness because it was wrong. ये जो सांस है गहरी, ये शायद उसकी रिलीफ, राहत की सांस हो कि उसकी चॉइस जो है राइट थी, या फिर उसकी उदासी की भी जो है सांस हो सकती कि उसने ज़िंदगी में एक बहुत गलत डिसीजन लिया था। विच रोड डिड द पोइट चूज़ फ्रॉम द फॉर्क इन द फॉरेस्ट? कौन सा रास्ता जो है पोइट चूज़ करता है? द स्पीकर चूज़ टू टेक द रोड लेस वॉक ऑन, ऐसा रास्ता जो कि लोगों के द्वारा कम यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर कम जो है लोगों के द्वारा चला गया है। So guys, we have completed the explanation and extract wise question answers of this poem. और अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है ये पोएम का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है, कि हर किसी व्यक्ति को जो है अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस करनी पड़ती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, लेकिन उसको उनमें से एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसमें जो है उसको बहुत ध्यान से सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी उस रास्ते पर अगर चलना शुरू कर देगा तो उसे वापस लौटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। और वही जो उसकी ज़िंदगी को तय करता है कि उसकी ज़िंदगी इसके बाद कैसी चलेगी। Now we will do the question answers of this poem. Where does the traveler find himself? What problem does he face? The traveler finds himself in the yellow woods at a point where the road forks into the forest. He is unable to decide which road to take to continue his journey, since it is not possible to take both the roads at the same time. यहाँ पर ट्रैवलर जो है अपने आप को कहाँ पाता है? येलो वुड्स में, ऐसे जंगल में जहाँ पर जो है चारों तरफ पीले रंग की पत्तियाँ बिखरी हुई हों, क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा था, और एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ से दो रोड्स जो है जंगल में अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं,
और वो अनेबल है डिसाइड करने में कि उसको कौन सी रोड पे जो है जाना चाहिए, कौन से रोड से अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो दोनों रास्तों पर एक समय में चल सके। ये फ्रेजेस हम इससे पहले भी जो है डिस्कस कर सकते हैं कि येलो वुड क्या है, ग्रासी और वेंटेड वियर क्या है, पासिंग देयर क्या है। अ येलो वुड it symbolizes the autumn season, which is synonyms of the old days. The poet may be referring to the middle ages of life. यहाँ पर इसको हमने लेने की ज़रूरत नहीं है। येलो वुड मीन्स ऑटम सीजन में जो है जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं, येलो लीव्स जो हैं स्प्रेड होती हैं, उसको येलो वुड बोलते हैं। ग्रासी एंड वांटेड वियर विच इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल। द पासिंग देयर, it is the road frequented by travelers. Leaves no step at trodden black. कोई भी पत्तियाँ जो है जो लोगों के द्वारा कुचली नहीं गई हैं। How will its own two way, एक रास्ता जो है दूसरे रास्ते को किस तरह से जाता है, कि अगर हम अपनी किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वो हमें किसी और रास्ते पर लेकर के जाता है। The expression means the decision we make in life leads to us on to the future roads or paths. एक डिसीजन हम लेकर के चलते हैं तो हमें किसी और रास्ते पर लेकर के जाता है और नए रास्ते दिखाता है। That we have to take as we move on in our life, जो हमें चूज़ करने ही पड़ते हैं क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3 and in last two lines of the poem? In stanza 2 and 3, the poet explains that the only difference between the two was that the one he chose was grassy and wanted wear. First road जो वो चूज़ करता है वो grassy है और less travelled है. It seemed to be less worn out by travellers. However, on second thoughts, it seemed to be equally worn down a similar manner. दूसरा विचार से क्या आता है कि दोनों ही रोड एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर जो है लोगों के चलने के कदमों के निशान नहीं हैं। However, in stanza 3, he says that on that morning both the roads seemed to be equally covered with the autumn leaves and seemed no traveller had so far walked the paths. और अगली सुबह जब वो थर्ड स्टेंजा में आकर के देखता है तो क्या पाता है कि दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं, दोनों ही रास्तों पर जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अभी तक चला नहीं गया है, क्योंकि कोई भी लीव जो है वो अभी ट्रोडन ब्लैक नहीं हुई है, यानी कि कुचली नहीं गई हैं। In the last two lines of the poem, here the poet says that he took the road less traveled by people and that has made all differences in journey of life. लास्ट में वो क्या कहता है कि मैंने एक ऐसा रोड चूज़ किया है जिसके ऊपर जो है बहुत कम लोगों ने अभी तक कदम रखा है, बहुत कम लोगों ने जिस पे चला है, तो वो यही चीज़ है जो उसमें और बाकी लोगों में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। Here all things are similar. So students, you have to revise the poem. It was all about this poem. You have to learn the questions which are given to you, and I have revised it again. If you have any doubts regarding the poem, regarding the question answers, you can comment in the comment section. Thank you.